good morning. This chapter, Atomic Structure, is very lengthy chapter. Already 4 volumes are there in the air on YouTube, and I'm sure you have watched my those volume. Now this is the last topic we are taking for atomic structure. Before proceeding, let me tell you, whenever you watch my video, if you really like it, then like it, subscribe it, and share it with your friends. ज्ञान की गंगा बह रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, साथ में उनको भी बेनिफिट हो जाए. And don't forget to like, subscribe and share. If you have any good views, then you can write in the comment box. Anyway, let us start the last topic of this atomic structure. You know, in my previous lectures, what we have studied, atomic structure. It was given by, first of all, J.J. Thomson. He gave the model of plum pudding model or watermelon model, right? But it was failed because it could not explain the Rutherford experiment. Then came Rutherford model. Rutherford said, for the very first time he used the word nucleus. He said in the center of the atom there is nucleus and electrons are revolving around it. But it was also failed because Clerk Maxwell says whenever any charged particle revolves around the oppositely charged, then slowly and slowly it will be attracted towards it and finally will fall into the nucleus. So your atom is not stable. Then came Bohr model of atom. Bohr model, it was quite successful. He also said that electrons are revolving around the nucleus. But what is the difference between these two models? Because here electrons are revolving in the fixed circular path whose energy is fixed. ऐਵੇਂ नहीं किसी भी शेल में घूम सकते हैं, fixed में घूम सकते हैं. But it could not explain Zeeman effect and Stark effect. So it was also failed. Then came quantum mechanical model of atom. You know, this is the last model till now. Wave mechanical or quantum mechanical model of atom. यही टॉपिक हमें पढ़ना है बिकॉज हमें 3 मॉडल पसंद नहीं आए. अब हम 4th पे जा रहे हैं. यू नो, इट इज बेस्ड अपॉन Schrodinger's. It is based upon Schrodinger's wave equation. Schrodinger wave equation. What are the postulates? Schrodinger ने दिया था अपनी इक्वेशन से, इसको एक्सप्लेन किया था, उसकी सॉल्यूशन से हमें बहुत कुछ पता चला था. What are the postulates? पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि ये जो मॉडल है ना, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे घूम रहा है उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं. वो ऑर्बिटल बेसिकली वेव है. फाइनली वैसे तो इसने ड्यूअल नेचर लिया है, पार्टिकल नेचर भी लिया है, वेव भी लिया है. मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नहीं, कि वो वेव की तरह है. इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो साई है. ये साई कहाँ से आया? श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आया. इसका कोई सिग्निफिकेंस है? नो. इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव. तो फिर इसका स्क्वायर निकाल लो, साई स्क्वायर. इट हैज सिग्निफिकेंस. इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और उसी जगह को हम लोग कह देते हैं ऑर्बिट या ऑर्बिटल. ऑर्बिट वर्ड हमारे बोहर ने यूज किया था. इसने फाइनली बोला कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं, उसके ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है. राइट. इसके पॉस्टुलेट्स क्या है? फर्स्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड. वेल, दिस वाज आल्सो सेड बाय बोहर, इज द सेम थिंग. सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक वेव is a function of psi. What is psi? Psi simply represents the amplitude of electronic wave, but it has no significance. Right now I have told you it simply represents the amplitude. No significance, by the way. But psi square represents the probability of finding electron around nucleus, right?
एंड द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एटम में कहाँ पड़ा है ये हमें 4 क्वांटम नंबर्स बताएंगे. सो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज given by 4 quantum numbers. 4 क्वांटम नंबर्स हमें देंगे. ये 4 क्वांटम नंबर्स कहाँ से आएंगे? श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आएंगे. एंड व्हाट आर दीज 4 क्वांटम नंबर्स? उसके लिए हम लोग करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. 4 क्वांटम नंबर्स हमें क्या क्या बताएंगे? एक और बात, सी बोहर ने बोला था कि न्यूक्लियस बीच में है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, जैसे एक सर्कल होता है ना, बस वैसे काटते हैं. श्रोडिंगर कहता है नो 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 नो, इट इज 3D. 3D कैसे है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर नहीं काटेगा, ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. लेट मी टेल यू, एक कड़ा होता है ना जो हम डालते हैं सर्कल, तो बैंगल लगा लो, वो बैंगल जो है ना उसकी तरह उसने ऑर्बिट बताया था बोहर ने. बट हमारे श्रोडिंगर कहते हैं कि नहीं, वो नहीं होता. इमेजिन करो कि बीच में क्रिकेट की बॉल है सेंटर में, दैट इज वेरी टफ एंड हार्ड. ऐसा लगता है कि वो न्यूक्लियस है. उसके ऊपर एक प्लास्टिक की बॉल चढ़ा दो. प्लास्टिक की बॉल हल्की हल्की होती है जो बच्चे खेलते हैं, आप वो चढ़ा दो. कहते हैं वो बेसिकली ऑर्बिट होता है, शेल होता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी, उसकी सरफेस पे कैसे भी घूम सकता है. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन है दैट इज 3 डायमेंशनल, जबकि बोहर ने बोला था कि ऐसे सर्कल की तरह घूमता रहता है. राइट, ये पहली बात है जो हमें श्रोडिंगर ने बताई. और ये 4 क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स. पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. ही सेड कि ये रहा अपना न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है. राइट, इसके लिए n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3, 4 और 5. ही सेज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको ये बताएगा कि मेन शेल कौन सा है, और हमें ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बताता है. कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ n1 है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ न्यूक्लियस के नजदीक होगा. अगर मैं कहूँ n4 है तो आप आइडिया लगाएंगे कि न्यूक्लियस से काफी दूर होगा. बीच में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है. वेल, और याद होगा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है. तो इनडायरेक्टली हमको ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बता रहा है. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं. n कैन नेवर बी 0. अगर कोई कहे कि n 0 है तो कहना झूठ बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता. सो n कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. And first shell is known as K, then L, M, N, O, P and so on. ये shells हैं और हमें N क्या बताता है? It tells about the energy of electron. And of course distance from the nucleus हमें बता ही रहा है ये. Well, second है azimuthal quantum number. एजियामेथुल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये हमें क्या बताएगा? ये हमें ये बताएगा कि एक शेल के अंदर सब शेल्स कितने होते हैं. अब ये बात बोहर ने तो बताई नहीं, उसने बोला पहला शेल है तो है. ये कहता है नहीं नहीं, पहले शेल में सब शेल होगा. जैसे कि एक शहर में गलियां होती हैं या एक एरियाज होते हैं, फिर उसमें हाउस नंबर होते हैं, फिर हम उसमें रहते हैं. सिमिलरली एजियामेथुल क्वांटम नंबर L से रिप्रेजेंट करते हैं. L हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल. यहाँ एक बात और बता दूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल का फॉर्मूला होता है n², 2n². द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज 2n². फर्स्ट शेल में 2 × 1 का स्क्वायर 2. सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8. फिर थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में. ये फॉर्मूला भी है, कोई क्वेश्चन आ जाता है. L tells us the number of subshells in a shell. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जो L की वैल्यूज होती हैं ये 0 से लेके n-1 तक होती हैं. राइट, 0 से n-1 तक. इसका क्या मतलब है? इट सेज
कि अगर मान लो पहला शेल है, हम पहले शेल की बात करते हैं, आपसे पूछते हैं चलो बताओ फर्स्ट शेल में कितने सब शेल हैं, आप कहेंगे फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला कैसे? L इक्वल टू 0 to 1 - 1 फॉर्मूला है, 0 से स्टार्ट करो और n - 1 तक जाओ। n कितना है? 1, तो 0 से 0 क्या वैल्यू हुई? 0, तो L क्या आ गया? 0। अगर मैं कहूं n2 है तो L कितना होगा? 0 और 1 होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि n3 है तो L की वैल्यू 0, 1 और 2 आ जाएगी। और अगर मैं आपसे कहूं n4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि L की वैल्यू कभी भी n के इक्वल नहीं होगी। ओके, सेकेंडली फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है। अब 0 का मतलब ये नहीं है कि नहीं है, उसका नंबर 0 है। सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, थर्ड में 3 सब शेल है, फोर्थ में 4 सब शेल है, 5 में करने की जरूरत ही नहीं है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 7 में 7 है। ये फॉर्मूला तो अपने आप बन गया। अब एक बात नोटिस करने वाली है कि 0 सब में आ रहा है तो क्यों ना कोई नाम ही रख दो, तो हमने इसका नाम रख दिया। L अगर 0 होगा तो इसका नेम S होगा, L 1 होगा इसे हम P सब शेल कहेंगे, अगर 2 होगा तो हम D सब शेल कहेंगे, 3 होगा तो हम लोग F सब शेल कहेंगे। ये हमने इसको नाम दे दिया। अब मैं उस पर दिखाने जा रही हूँ। देखो फर्स्ट में एक ही शेल है, एक ही सब शेल है, इसमें 2 सब शेल है। ये देखो, एक का नाम S है, एक का P है। ऑलवेज रिमेंबर S इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। थोड़ा छोटा वाला बेबी है घर का, बहुत चहेता है न्यूक्लियस का। फिर P आता है। थर्ड में कितने हैं? 0, 1 and 2, 3 सब शेल्स आ जाए। सी, मैं यह दिखाने की कोशिश कर रही हूं, ये 3 सब शेल्स होंगे, राइट। एक पहले वाले का S है, P और D है। फोर्थ वाले में 4 होंगे, एक का S है, एक का P है, एक का D और एक का F, S, P, D और F। और 5 वाले में 5 होंगे, 1, 2, 3, एक तो बना ही हुआ है, 4 और 5। इनके नेम होंगे S, P, D, F और G। आपकी NCERT की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि G सब शेल किस में स्टार्ट होता है? 5 में। पहली बार G का नाम 5 में आया, पहली बार P का नाम 2 में आया, पहली बार D का नाम 3 में आया, एंड सो ऑन। इन विच शेल G सब शेल इज स्टार्टेड? दैट इज 5 शेल। दिस इज द NCERT बैक क्वेश्चन। वेल, तो हमने इसका नाम रख दिया। n अगर 1 है तो L 0, 1, 2 मीन्स नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n आ जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल का क्या फॉर्मूला होगा? इट विल बी 2L + 1। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। जहाँ जरूरत होगी वहां हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट शेल में 1 सब शेल है जिसका नाम S है, उसमें SP, SPD, SPDF एंड SPD। अब देखो बोहर से कैसे डिफरेंट है। बोहर ने बोला कि सेकंड शेल है, अब श्रोडिंगर बता रहा है नहीं, सेकंड में 2 है, मींस 2 सब शेल है, इसको भी सेकंड कहेंगे, इसको भी सेकंड कहेंगे, लेकिन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है। एंड मोर ओवर पेनिट्रेशन पावर यानी कि क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस और एनर्जी ऑफ सब शेल अगर हम काउंट करें तो S इज लेस देन P, लेस देन D, लेस देन F। S की एनर्जी सबसे कम होगी। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे होता है, 0 होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस के नजदीक आता है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, तो दूर रहेगा एनर्जी ज्यादा, जितनी पास आएगा एनर्जी कम होती चली जाएगी। सो ये इसका एनर्जी ऑफ सब शेल है, ये हमें देता है। और हमें इस एजियामेथल क्वांटम नंबर से और क्या पता चलता है? डू यू रिमेंबर कि हाइड्रोजन का हमने स्पेक्ट्रम लिया था, उसमें फाइन लाइंस आई थी, ये उसको एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन्स द फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, राइट, ये उसको एक्सप्लेन करता है। वेल, उसके बाद थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी ML भी लिख देते हैं, स्पिन को वैसे S लिखते थे, आजकल MS लिख देते हैं। आप M से रिप्रेजेंट कर लो, इन सम बुक्स इट इज रिटन ML। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। इट गिव्स द, उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ओरिएंटेशन कहते हैं।
it gives the orientations of a subshell. That is, in other words, we can say it gives the number of orbitals, sorry, हाँ ठीक लिखा था, number of orbitals in a subshell, right? और इसकी वैल्यूज क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एजेमेथो से जुड़ा हुआ है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहता है, हमने इसको बोला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, चल बता पहले शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है? कहता है सॉरी मेरे को शेल वेल मत पूछो, मुझे एन मत बताओ, मैं तो एल की बात से बताऊंगा आपको। मींस एल की वैल्यू से मैं आपको वैल्यू बता सकता हूं, एन मेरे सामने मत लाना। ओके, इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? वैल्यूज ऑफ ये लाई करती हैं फ्रॉम -L टू +L। ये बोलता है मुझे बताओ कौन सा एल है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। वेल, वन बाय वन वी विल टेक। एल अगर 0 है तो हम इसे क्या कहते हैं? एस सबशेल। और एम की वैल्यू क्या होगी? -1 0, सॉरी एल 0 है तो -0 से 0 0 आ जाएगा। एल अगर 1 है तो हम इसे पी सबशेल कहते हैं। एम की वैल्यू -L यानी कि -1 0 +1। अगर एल की वैल्यू 2 है तो इसे हम कहेंगे डी सबशेल और एम की वैल्यू होगी -2 से लेके +2 तक जाना है, -1 0 +1 +2। ओके, अगर L इक्वल टू 3 होगा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द F सबशेल, तो M की वैल्यूज -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब इसने क्लियरली बोल दिया भाई जहां जहां S होगा ना वहां पे एक ही ऑर्बिटल है, और इसको हम ऐसे शो करते हैं, ऑर्बिटल को ऐसे स्क्वायर बॉक्स की फॉर्म में शो करेंगे। P वाले के 3 हैं सबशेल आपके ऑर्बिटल्स, और डी वाले में ऑर्बिटल जो है वो आपके 5 हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। और एफ वाले में आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर 7 इन नंबर, राइट। और इसमें जो नाम दिया गया इसकी वैल्यू 0 है, इनमें से ये -1 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी +1 है, इसमें -2 -1 0 +1 +2। अगर आप में से कोई कहते हैं कि नहीं 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 0 आगे लिखो, मुझे नहीं पसंद आया, आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स आप इसको 0 बोलो, तीनों में से किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, ये जो है चाचे ताऊ के लगते हैं एक दूसरे के। सो 0 -1 +1 +1 0 -1, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी सेम होती है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए एक सीध में लिख देते हैं। ओके, अब आपको ये पता चल गया कि इस वाले शेल में 1 सब शेल है जिसका नाम है एस, और उस एस में केवल एक ही बॉक्स है, राइट। इसमें एस में एक बॉक्स है, मींस ऑर्बिटल्स है, पी में 3 है, मैंने बना दिए। फिर इसमें आप लिखेंगे 1, इसमें 3, इसमें 5 बनाएंगे। इस तरीके से हमने ऑर्बिटल्स बना लिए। वेल, ये हमें क्या देता है? जो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। पहली बात, हमको ये ओरिएंटेशन देता है, जिसे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल इट विल टेल अस। और दूसरी बात जो है, इट एक्सप्लेन्स जीमन इफेक्ट। जो स्प्लिटिंग हुई थी ना लाइंस की, वो इन्हीं ऑर्बिटल्स की वजह से हुई थी। जीमन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन करता है, राइट। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, इतनी लंबी लंबी स्टोरी मैं नहीं करता, मेरा वो सिंपल सा फंडा है कि इन एवरी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड विद ऑपोजिट स्पिन, और वी कैन से स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और एक की वैल्यू +½ है और एक की वैल्यू -½ है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? इन एवरी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड विद ऑपोजिट स्पिन। एक का +½ वैल्यू है, ये वैल्यू श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आई है, एक +½ है, एक -½ है। इससे तो सब कुछ क्लियर हो गया क्या? देखो, पहले शेल में एक ही सब शेल है, उसका नाम है एस, और एस में एक ऑर्बिटल होता है, और स्पिन ने हमको बताया जितने ऑर्बिटल होंगे ना इलेक्ट्रॉन उससे डबल कर लो, तो पहले शेल में तो खाली 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
यस। और इसमें कितने आएंगे, S में 2 और P में कितने आएंगे 6, टोटल हो गए 8। अब यहां से समझने की कोशिश करो, S में हमेशा इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, P में कितने आएंगे 2 4 6 आएंगे, D में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 5 इंटू 2 10 आएंगे, और F में कितने आएंगे 14 आएंगे। ये नंबर फिक्स है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 है, थर्ड में देखो 2 प्लस 6 प्लस 10 यानी कि 18 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हैं। दोबारा से देखेंगे, quantum numbers, these are 4 in number. We have obtained this quantum number by the solution of Schrödinger wave equation, but this spin quantum number is not obtained directly by the solution of Schrödinger wave equation, but indirectly we got this. Principal quantum number represented by n, the number of shell. Azimuthal quantum number L, it gives us the subshell in a shell. And magnetic quantum numbers, either orientation or orbitals in a given subshell. And we came to know at the end that S can accommodate 2, P can 6, D 10 and F 14 electrons can accommodate. और ये भी क्लियर हो गया कि मान लो किसी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इफ आई आस्क यू कि एक एटम के अंदर N4 है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 4 का मतलब है कि आपके S में कितने होंगे 2, उसमें 6, उसमें 10 और उसमें 14, काउंट करो कितना बनता है 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट। इन 32 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्लस हाफ होगी, ऑफ कोर्स हाफ की, यानी कि 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ होगा और 16 इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ होगा। ये आपकी एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन n इक्वल टू 4 हैज प्लस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर। आंसर इज सीधा कितना आएगा 16। ओके, और इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल and which are not possible and give the designation. See, question है n equal to 0, L1, M0, S plus minus half. Is it possible? No, it's not possible. Why? Because the value of n cannot be 0. Next, n equal to 1, L equal to 0, M equal to 1, S equal to plus minus half. This is once again not possible. Why? Because m की वैल्यू l से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती. So this is again not possible. n equal to 2, l 0, m equal to 0, s equal to plus minus half. Yes, this is possible. What is the designation of this? इसको 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखेंगे. रिमाइंड कि l 0 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं s. तो वी आर टॉकिंग अबाउट 2s. इसकी जो डेजिग्नेशन है वो 2s है. अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसका, राइट. सो 2s आंसर देना है आपको. m इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1, s प्लस माइनस हाफ. व्हाट इज द डेजिग्नेशन? बस आप इन दोनों को देखो खाली, तो ये क्या बन जाएगा 3p बन जाएगा. n इक्वल टू 4, l 0, m 0, s प्लस माइनस हाफ. What is the designation? 4s. और अगर यहाँ पे 2 होता तो 4d हो जाता, इसका नाम हो जाता 4d. और कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा राइट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम. उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा. बट लेट मी टेल यू कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s में जाता है. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि 3s के सारे क्वांटम नंबर्स लिखो. जो 3 है ये n होता है, s लिखा हो तो l 0 होता है, और m की वैल्यू ऑफ कोर्स 0 होगी या इससे कम होगी, इससे कम तो हो नहीं सकता. सो 0 है तो s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो जाएगी. ये क्वेश्चन भी आते हैं. एक और क्वेश्चन बताती हूँ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम हैव n प्लस l इक्वल टू 3. कितने इलेक्ट्रॉन्स का n प्लस l 3 होगा.
देखो अगर मैं इसको 3 लिखूं, इसको 0 लिखूं तो आंसर 3 आता है। n को 2 लिखूं, इसको 1 लिखूं तो भी आंसर 3 आता है। अब इसको मैं लिखूं 1 और इसको 2, नॉट पॉसिबल, क्योंकि l की वैल्यू n से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो कितने बने? केवल 2। इसका नेम है 3s, इसका नेम है 2p। अब s किसी का भी हो, 3 का, 4 का, 5 का, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आएंगे ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। p में कितने आते हैं? 6। टोटल कितने हो गए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का n प्लस l 3 आएगा। ऐसे ही आप n प्लस l 5 करके करो, n प्लस l 6 करके करो, एक एक करके ट्राई करते जाओ, तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्बिटल। यही लिख देती हूं मैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा 3D स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। ध्यान रखना, मैक्सिमम होती है, 100 नहीं। अब जैसे बोहर ने बोला था ना इलेक्ट्रॉन यही चक्कर काटेगा, ये कहता है नहीं, 95% उम्मीद है कि वहीं मिलेगा, 5% कहीं भी हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन खाली सर्कल में टिकता नहीं है, इधर उधर भागता भी रहता है। सो व्हाट इज ऑर्बिटल? इट इज 3D space around nucleus where probability of finding electron is maximum. What is maximum? That is 90 to 95% पाए जाने की संभावना जिस जगह पे होती है उसी को हम ऑर्बिटल कह देते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं भी जा सकता है, वो टिकता नहीं है एक जगह पे। वेल, दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्बिटल। इसको हम करते हैं रब। और नेक्स्ट टॉपिक है द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। हमारे सिलेबस में एस, पी और डी है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। पहले हम लिखते हैं एस की शेप। अब आपको पता होगा एस के लिए एम क्या होता है? 0 का मतलब एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। अब एक ओरिएंटेशन तो ऐसे पॉसिबल होगी, ये न्यूक्लियस है, ये एस, यानी कि इट इज स्फेरिकल। इसकी शेप होती है स्फेरिकल। पी में एम कितना होता है? -1, 0 और +1, यानी कि पी के ऑर्बिटल 3 है। अब तीनों, एक एक्स में जाएगा, एक वाई में, एक जेड में, हम ऐसे दिखा देते हैं। तो इसमें से एक का नाम है पी एक्स, एक का नाम है पी वाई, एक का नाम है पी जेड। पी एक्स, इसको एक्स मान लो, ये ऐसे होता है, डबल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल ऐसे होता है। आप वाई को यहां दिखा दो तो वाई ऐसा हो जाएगा, जेड को इस दिशा में दिखा दो तो ये पी जेड हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है आप इसको जेड ले लो, इसको एक्स, इसको वाई ले लो, बट डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। तो एक हमारा पी एक्स है और एक पी वाई है और एक हमारा पी जेड है। यहां मैं आपको ये भी बता देती हूं, 0 की वैल्यू ना पी जेड को दी गई है, कन्वेंशन है। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपका जी करे तो आप इसको 0 दे दो, बट बाय कन्वेंशन पी जेड के लिए एम की वैल्यू हमने 0 रखी हुई है। इन दोनों के लिए +-1 है। पी एक्स की +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, सेम इज हियर, बट बाय कन्वेंशन हमने पी जेड की वैल्यू 0 रखी हुई है। ऐसे ही डी सब शेल में एम की वैल्यूज थी -2, -1, 0, +1, +2। मीन्स डी ऑर्बिटल्स 5 इन नंबर होते हैं। उनका नाम क्या है? देखो, हमने इसका नाम रखा हुआ है DXY, ये x है, ये y है, इनके बीच में इनकी प्रोबेबिलिटी, इसे DXY हमने शो कर दिया। ये ऑर्बिटल है DXY और ये होता है DYZ। इसको y मान लो, इसको z मान लो, ये देखो इनके बीच में ये इस तरीके से। ऐसे ही DZX है, वो भी इनके बीच में होता है, इसका नाम है DZX। इसको z ले लो, इसको x ले लो। एक होता है dx² - y², सी, इसका नाम है dx² - y²। और एक होता है d, ये यहाँ पे x एक्सिस है, ये z है, इसका नाम है dz²। सी वेरी केयरफुली, ये दोनों ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है, मीन्स x और y के ऊपर है, और ये x और y या z के बीच में है।
तो इन दोनों में फर्क क्या है? 45 डिग्री के एंगल का डिफरेंस है इनकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। जो मैंने ये शो किया ना, ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करेगा, इसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। इन सब की जो शेप है ना, ये है क्लवर लीफ लाइक। क्लवर क्या होता है? क्लव होता है लॉन्ग, लॉन्ग के पौधे की जो पत्ती होती है ना, उसका आकार ऐसे होता है, और इसे हम कहते हैं डोनट। इसकी डोनट शेप है। पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? डम्बल शेप होती है, दे हैव डम्बल शेप। एस स्फेरिकल, पी डम्बल, डी वाले क्लवर लीफ लाइक एंड डोनट होते हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने वो सारे डिस्कस कर लिए। अब एक बात और सुनो, डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू, ये पांचों में से हमने ये वाली वैल्यू इसको दी है, डी जेड स्क्वायर को, और प्लस माइनस वन किसको दी है? जिसमें जेड आता है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। इन दोनों को हमने वैल्यू दे रखी है प्लस माइनस वन की। जिसमें एक्स और वाई आता है ना, इन दोनों को हमने वैल्यू दे रखी है प्लस माइनस टू की। ये कन्वेंशन है, फिक्स नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था तुम इसको जीरो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इनको बाय कन्वेंशन वी हैव गिवन प्लस माइनस वैल्यू टू दीज एक्स वाई वाला, जिसमें z एक बार आता है प्लस माइनस वन, और z स्क्वायर को हमने बोला चल तू जीरो ले जा आपके साथ। तो ये हमारी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स है। इसको भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हमने एटम का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। सपोज हमारी गली में अगर कोई फंक्शन होता है, मेरे घर में अगर मैं लड्डू बांटने जाती हूँ, तो किस क्राइटेरिया क्या रहेगा? सेम इज हैपनिंग हियर, मींस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? सी, तीन रूल्स फॉलो करेंगे हम लोग। रूल बनाया है इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये ऑफ बाउ कहाँ का रहने वाला था? कहीं का भी नहीं, ये तो साइंटिस्ट है ही नहीं, ये तो एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू बिल्ड अप। ओके, ये प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन लो एनर्जी सबशेल। पहले लो एनर्जी वाले सबशेल को दो इलेक्ट्रॉन्स को, देन इन हायर एनर्जी सबशेल्स। अब हमने कहा हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है, किसी की ज्यादा है? तो इसके लिए रूल दिया गया बाय n+l रूल, जिसको हम बोहर बरी रूल भी कहते हैं। मींस जिसका n+l की वैल्यू स्मॉल आएगी उसको हम पहले फिल करेंगे, फिल फर्स्ट। देन समबडी सेज अगर दो सबशेल का n+l सेम आ जाए तो किसको फिल करेंगे? जैसे कि आपका 3+2 का आंसर भी 5 आता है, 3d की बात चली जाएगा। 4+1 का आंसर भी 5 आता है, मींस 4p सबशेल की भी 5 वैल्यू है और 3d की भी 5 वैल्यू है। तो किसको पहले फिल करेंगे? तो बोहर बरी कहता है जिसका n स्मॉल है आप उसको फिल करोगे। तो अगर सेम आएगा तो जिसका n स्मॉल होगा दैट विल बी फिल्ड फर्स्ट, उसको हम पहले फिल करेंगे, फिल्ड फर्स्ट। ओके, सो ये बड़ा मुश्किल है क्या? n+l निकाल के देखना पड़ेगा? नो नो नो, एक सिंपल मेथड भी हमने दिया हुआ है ऑफ बाउ प्रिंसिपल में। देखो तुम्हें तरीका बताती हूँ, किसको पहले भरेंगे किसको बाद में। 1s 2s 2p लिखते जाओ, 2d नहीं होता हमने अभी पता लगा लिया। सो 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। हम जी तक क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आज तक कोई ऐसा एटम डिस्कवर ही नहीं हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन जी में जाता हो, f तक ही गए हैं। तो 6s 6p 6d 7s 7p। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये लिख लो, इट्स नॉट डिफिकल्ट। फिर दो ना टिल्टेड लाइंस लगाओ, देखो 1s 2s, ये देखो ये अपने आप होता चला जाएगा, बस आपने दो लाइंस टिल्टेड लगानी है। इसका क्या फायदा है? पहले हम 1s को फिल करेंगे, फिर 2s को करेंगे, पीछे से आगे की तरफ आना है, फिर हम 2p और 3s को फिल करेंगे, फिर हम 3p 4s को करेंगे, फिर हम करेंगे 3d 4p 5s। आपको सिर्फ इतने तक याद रखना है, आगे याद भी नहीं रखना है। ये है आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल। चलो ट्राई करते हैं।
अगर मुझे कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन लिखने हो, डिस्ट्रीब्यूट करने हो, तो मैं कैसे करूँगी? देखो, पहले हम 1s में जाएंगे, 1s को बोलेंगे नॉक नॉक, इलेक्ट्रॉन देने आए हैं हम लोग। तो 1s कहता है भाई s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, कहते हैं 2 दे दो मुझे, लो तुझे दे दिए। फिर हमने 2s के घर गए, नॉक नॉक, तो 2s बाहर निकला, बोलते हैं मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, दे दिए। 2p के घर में गए हम, तो 2p कितने मांगेगा? 6 मांगेगा, तो 2p के 6 इलेक्ट्रॉन है। 3s के घर जाएंगे, 2, 3p के घर जाएंगे 6, गिन लो कितने हो गए, 2 4 6 18 हुए हैं। फिर हम 4s के घर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, छोड़ दो। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। जहां आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है ना, बस उसके घर में दे के आप फ्री हो जाओ। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s के बाद किसकी बारी आती है? 3d की। अगर क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम से पहले हम लोग ना, हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ले लेते हैं, 23 हो, इसका 21, 22, 23 ले लेते हैं। 23 में क्या होगा? ये 20 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही फिल किए जाएंगे सबके घरों में। हमें जाना ऐसे ही है हर एक के घर में। आप पहले 4s के घर में नहीं जा सकते सीधा, भी 4s ले ले इलेक्ट्रॉन, बोलेगा ना, पहले उनको दे के आओ इलेक्ट्रॉन, फिर मैं लूंगा। सो 3p6, 4s2, 20 के बाद 3 बच गए, फिर हम 3d के घर में गए, 3 तू ले ले भाई, तो 3d ने क्या किया? 3 ले लिए। ये वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन है। चलो क्रोमियम की चलते हैं। क्रोमियम के 24 होते हैं, क्वाइट अंडरस्टूड कि इसको 3d4 मिलेगा। चलो ये सेम 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 सेम, 4s2, 3d4। ओके, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए थी। 3d रोने बैठ गया। 3d कहते हैं 4s को यार एक इलेक्ट्रॉन दे दे, बोलते हैं क्यों दूं? देख मेरे ना 10 आते हैं इलेक्ट्रॉन टोटल, अगर तू मुझे एक देगा ना, मेरे 5 हो जाएंगे, मैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाऊंगा। क्या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है? यस, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की रॉन्ग है। दिस इज एक्सेप्शन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारा लिखेंगे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. One electron is shifted from 4s to 3d because 3d5 configuration is more stable. और हमारी केमिस्ट्री में सारे काम स्टेबिलिटी के लिए किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल लीगल है। उसके बाद कॉपर आ जाओ। कॉपर की 29 है, सेम सेम आएगा, 4s2, 3d9 आएगा। ये भी एक्सेप्शनल है, रोने बैठ जाता है। 4s को बोलते हैं यार एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं फुल्ली फिल्ड हो जाऊंगा, रोक नहीं सकते, तो ये भी रॉन्ग है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s1, ये सेम लिखनी है आपने, 4s1, 3d10। सो दीज टू आर द एक्सेप्शनल वन। फिर आपके स्कूल में एक क्वेश्चन आएगा कि क्रोमियम प्लस की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्रोमियम प्लस का क्या मतलब होता है? कि आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन दे दो किसी को। अब सवाल ये उठता है, इसका आखिरी 3d बनेगा कि 4s बनेगा? तभी तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ अगर क्रोमियम को मैं बोलूँ चल निकाल अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो बताओ 3d में से निकालेगा कि 4s में से? ऑफ कोर्स 4s में से निकालेगा, क्योंकि जिसका n बड़ा होता है ना, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वही देगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आप क्या लिखोगे? सब सेम लिख के 4s0 और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू राइट डाउन। So this is how you can write down the configuration of these elements or atoms. आप 3D तक ही याद कर लो, इससे ज़्यादा अभी नहीं आता है सिलेबस में। आ भी गए तो कौन सा मुश्किल है, ये लिखा हुआ है, तुम वैसे ही आगे बढ़ जाना। और एक्सेप्शनल केसेस हमको नज़र आ ही जाते हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ टू मोर रूल्स आर देयर। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमने पहला ऑबो प्रिंसिपल पढ़ा, 2 और हैं। एक है हुंड्स रूल ऑफ। अगर ये टॉपिक आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। दूसरा रूल है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस रूल का क्या मतलब है? इस रूल का मतलब है, हुंड ने कहा था कि मान लो तुम इलेक्ट्रॉन 2p के घर जा रहे हो देने के लिए,
जैसे कि मैं आपको नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दूं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन थे, हमने p को 3 इलेक्ट्रॉन दिए, खत्म हो गए। अब जो p है p3 होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आपने कैसे दिए इलेक्ट्रॉन? इसका नाम है px py pz। क्या आपने ऐसे बांटे हैं इलेक्ट्रॉन? मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। रॉन्ग। हुंड जी नाराज हो जाएंगे। हुंड जी कहेंगे भाई देखो, जब आप किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन देने जाते हो तब तक पेयरिंग मत करना जब तक सबको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हमारी ठीक है। व्हाट इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है दोबारा, यानी कि इसका पेयर। सो इट स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगी जब तक until all the orbitals have got 1 electron each। जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। तो ऐसा, ये रॉन्ग है, ये राइट। अगर एमसीक्यूज आते हैं तो ये भी आता है विच इज वायलेटिंग द हुंड्स रूल, ये वायलेट कर रहा है, मतलब उसको मान नहीं रहा। तीसरा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हमारे पॉली जी ने क्या बोला था? पॉली ने बोला कि देखो, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दोनों ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए। ये राइट है। कहता है अगर आपने एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के डाल दिए तो कहता है एक को बाहर निकाल दो। कैसे? इसके 3 क्वांटम नंबर तो सेम होंगे। मान लो 4s में पड़ा है, एन भी दोनों का सेम होगा, एल भी एम भी, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब है नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 हो सकते हैं लेकिन चौथा नहीं होगा। तो एक्सक्लूजन का क्या मतलब है? कहता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन का सारा कुछ सेम आ रहा हो ना तो एक को एक्सक्लूड कर दो, बाहर निकाल दो। तो वहां से ये वर्ड आया और ये मतलब है। इसको हम दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं, इन एन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड विद ऑपोजिट स्पिन। और ये दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया। अब पहले तो मैं आपको ये बताती हूं कि क्रोमियम और कॉपर में ऐसा क्यों किया। मींस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आखिर क्या वजह है जो D5 और D10 ज्यादा स्टेबल है? 2 बातों की वजह से। पहला है कि इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जाता है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। और दूसरा है इनकी हाई एक्सचेंज एनर्जी होती है। एक्सचेंज एनर्जी किसे कहते हैं? ये देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे अब ये ना एक दूसरे के घर में आते जाते रहते हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ एक दूसरे की ना पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं। और जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी एनर्जी बाहर निकलती है और एटम उतना स्टेबल होता है। इसलिए एक तो इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है और एक इनका जो है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। नाउ व्हाट इज अ नोड? नोड क्या होता है? सी, ये हमने पी ऑर्बिटल बनाया था ना, ये जो है जगह है इसे हम नोडल प्लेन कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएगा, या तो यहाँ घूमेगा या फिर यहाँ घूमेगा। नोड इज अ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर no electron is found or its probability is 0. With the probability of finding no electron is found, या where probability of finding
इलेक्ट्रॉन इज 0. सो नोड भी टू टाइप्स का होता है. एक होता है स्फेरिकल नोड. नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला है n-l-1. अगर मैं आपसे पूछूं कि 3s में कितने स्फेरिकल नोड्स हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 3, इसका n कितना है 3, s का l कितना होता है 0 माइनस 1 मीन्स इसका आंसर आएगा 2. 3 माइनस 0 माइनस 1 मीन्स 2 आंसर आ जाएगा. और नोडल प्लेन का क्या होता है? नोडल प्लेन तो फिक्स है. S में 0 होता है, P में 1 होता है, D में 2 होता है और F में 3 होता है. तो ये अगर क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान से सुनना है. अगर बोलेगा 3s में नोडल प्लेन कितना है तो आप 0 कहेंगे. अगर 3s में स्फेरिकल नोड पूछेगा तो आपने ये फॉर्मूला लगा देना है. आपका बचा अब लास्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में भी है कि हाइड्रोजन में जो एनर्जी डिसाइड होती है वो केवल n के बेसिस पे होती है. इट इज डिसाइडेड बाय n ओनली. कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3s और 3p में से हाइड्रोजन में किसकी एनर्जी ज़्यादा है तो आप खाली 3 को देखेंगे, बोले सेम तो है, दोनों का n क्या है दिस, आंसर आएगा सेम. अगर मैं आपसे पूछूं 3s और 4s में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है तो आप कहेंगे 4s की. और अगर आपसे पूछा जाए कि 4s और 3d में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है तो आप 4s की कहेंगे क्योंकि जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उसमें ऐसा नहीं होता है. उसमें जो एनर्जी डिसाइड होती है ना, डिसाइडेड बाय n प्लस l. अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में मैं 3s और 3p में से पूछूं किसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब है 3 प्लस 0 3, इसका मतलब है 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होएगी. इन दोनों में से इसकी होएगी. इन दोनों में से 4s और 3d दोनों का जवाब, इसका 4 आ रहा है इसका 5 आ रहा है तो 3d की एनर्जी ज़्यादा होगी. ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है. अगर आप MCQs पढ़ते हो तो उसमें जरूर आएगा. अब आप इस वीडियो को, क्योंकि क्वांटम नंबर्स मुझे पता है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्वांटम नंबर्स के टॉपिक को आप कम से कम 2-3 बार देखेंगे. देखो 2-3 बार देखने से लेक्चर लर्न हो जाता है और ये साइंस का रूल है. जब तक आपको लेक्चर लर्न नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा थॉरोली, तब तक आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. बट मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी और इस वीडियो में भी क्वेश्चंस को भी मैंने डिस्कस किया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम. इसके बाद आप एनसीईआरटी की बैक कीजिए, आप हेल्प ले सकते हैं हेल्प बुक की, MCQs कीजिए और डेफिनेटली जो आपके मॉड्यूल्स हैं जहाँ भी आप जा रहे हैं आप वो कीजिए, डेफिनेटली सॉल्व होगा. बट डोंट फॉरगेट टू गिव द व्यूज, कमेंट्स एंड सजेशंस एंड रियली लाइक द वीडियो. देन लाइक के बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. Thank you for watching and all the best.